In this video, we will discuss about citric acid cycle, or known as Krebs cycle, also called as tricarboxylic acid cycle or TCA cycle. This involves product of 3 carbon in length, tricarboxylic acid cycle. Krebs discovered it, so this is called as Krebs cycle. And Krebs scientists also got Nobel Prize for the same for its discovery in 1954, 1953. This is called as citric acid cycle. Citric acid, an organic acid, is being produced during this cycle. This cycle actually occurs in cell organelle called as mitochondria. So mitochondria is also powerhouse of the cell. During a process in respiration, this is called as glycolysis, which occur in the cytoplasm of the cell. Pyruvic acid is produced, and that pyruvic acid get transferred to mitochondria, and that pyruvic acid from glycolysis process enters into mitochondria by pyruvate OH antiport carrier in inner mitochondrial membrane. तो अभी हम डिस्कस करेंगे what is inner mitochondrial membrane. Like this is a cell organelle which is present in the cell, right? Now this is a cell in which this cell organelle mitochondria is present, right? This is also called as powerhouse of the cell, and this is involved in cellular respiration, and this produces lot of energy, mitochondria, for respiratory process. And how this produces, this we are also going to discuss. So this generates ATP. Mitochondria, that's why it is called as powerhouse of the cell. Now these are two membranes. This is the outer membrane of the mitochondria, and this is the inner membrane which is being produced into crista. To know about the structure of mitochondria, there is a video structure of mitochondria, you can watch that. So ये दो membranes जो हैं outer and inner, ये इनमें अलग प्रोसेस होता है, लेकिन ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे इसका अपना डीएनए भी है, उसकी वजह से हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं. और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स पार्ट है ये वाला, यहाँ पे ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होगा या क्रेब्स साइकिल होगा. ठीक है. नाउ इसमें जो पायरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस से बनता है, दैट विल एंटर इनटू द मेम्ब्रेन राइट हियर, एंड हियर ऑल द प्रोसेसेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया विल टेक प्लेस. So pyruvic acid enters into the matrix of mitochondria. Like we discussed, this part is the matrix, this part, right? So there 3-step reaction will take place. First is decarboxylation, mean loss of carbon dioxide. Oxidation हो जाएगी. Conjugation, this will be combining with coenzyme A, and this will be converted to acetyl coenzyme A. अब ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है, एंड एसिटाइल कोएंजाइम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन और गेटवे स्टेप, राइट? Now this link reaction or gateway step leads to formation of acetyl coenzyme A. So pyruvate dehydrogenase complex, this is a complex, you can say mixture of enzymes, which is having 3 enzymes and 5 cofactors. Now what are these 3 enzymes and 5 cofactors? Pyruvate dehydrogenase E1, then dihydrolipoyl transacetylase enzyme 2, and dihydrolipoyl dehydrogenase enzyme 3. So 3 enzymes they are involved, and 5 cofactors are involved. Thiamine pyrophosphate, flavin adenine dinucleotide, coenzyme A, nicotinamide dinucleotide, also called as NAD, and lipoic acid. So these are 5 cofactors which are involved in this gate reaction, and how this is taking place, this gate reaction, and this we are going to discuss. Now see, this is pyruvic acid. We can also write pyruvic acid like this. जैसा लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, राइट? Now this pyruvic acid, this will form a complex with thiamine pyrophosphate. Thiamine pyrophosphate is a cofactor. So this will combine with pyruvic acid. So this will become pyruvic acid thiamine pyrophosphate, right? Then decarboxylation will take place, when loss of carbon dioxide will occur, and pyruvate dehydrogenase or decarboxylase, which is the first enzyme, this will help in decarboxylation. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, and this will get converted to acetaldehyde TPP.
mean this is combining with thiamine pyrophosphate and this has been converted to acetaldehyde. So this is acetaldehyde. One carbon dioxide has been removed or decarboxylation has occurred. Now this acetaldehyde TPP, now this is going to combine with another cofactor called as lipoic acid. So this is the lipoic acid. We can see here, this is lipoic acid. Now when it is combining with lipoic acid, then TPP will be generated, right? So this will go back and this will be involved in other reactions. So here we have seen that this acetyl has combined with lipoic acid. Now we can see here the formula of lipoic acid, CH2 CH2 SSCH CH2 ब्रैकेट में ऐसे मीन 4 बार इसको हम लिख सकते हैं. 4 बार लिखने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 ऐसे खोल के 4 बार, राइट. सो ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब चेंज क्या आया है. तो हम देखेंगे यहाँ पर CH2 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 ऐसे 4 बार COH और इस पोजीशन पे यहाँ पर क्या लग गया हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है इसका यहाँ पे लग गया है और हाइड्रोजन इधर लग गया, ये रिड्यूस हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल लिपोइक एसिड. नाउ दिस एसिटाइल लिपोइक एसिड with the help of enzyme dihydrolipoyl dehydrogenase, which is also called as enzyme 3, right. Now reduced lipoic acid will be produced, right, and acetyl coenzyme A will get separated. यहाँ पर ये जो पॉइंट था यहाँ पर ये निकल जाएगा और यहाँ पर ये SH reduce हो गया. reduced lipoic acid will be produced and now this is acetyl coenzyme A which is free. Now this reduced lipoic acid will again get converted to lipoic acid, right, and ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन जो है दोनों रिमूव हो जाएंगे, right, and FAD will accept these two hydrogen and this will get converted to FADH2 and this will give these two hydrogen to NAD and this can get converted to NADH और lipoic acid फिर से वैसे ही regenerate हो गया. So जो भी enzyme है during the reaction this will remain unchanged. So after doing or fasting the reaction यहाँ पे हम देख रहे हैं कि coenzyme A ऐड हो रहा है, ठीक है. सो ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसमें ये कोएंजाइम यहाँ से ऐड हो रहा है एंड दिस इज बीइंग कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो हमारे पास जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज. मीन दिस इज ट्रांसफरिंग द एसिटाइल ग्रुप. सो ये पूरा रिएक्शन होने के बाद वी हैव गॉट एसिटाइल कोएंजाइम ए. इसमें पूरे एंजाइम्स इन्वॉल्व है. कौन कौन से? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, देन डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज and third is dihydrolipoyl dehydrogenase. So ये 3 enzymes involved हैं. Ultimately pyruvic acid is getting converted with the help of this complex called as pyruvate dehydrogenase complex. So इसकी functioning के लिए क्या चाहिए? Magnesium ions, and this is being converted to acetyl coenzyme A. This is acetyl coenzyme A and NADH and carbon dioxide का loss हो रहा है. What is NAD? This is called as nicotine amide adenine dinucleotide and FAD is called as flavin adenine dinucleotide. अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है मैट्रिक्स में. अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है, अल्टीमेटली ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये वाला, राइट, जो पायरुविक एसिड से बना है यहाँ पर, तो हम ये रिएक्शन को देख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है. पायरुवेट और पायरुविक एसिड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कोएंजाइम में ऐड हो रहा है जैसे अभी हमने देखा था. NAD इज बीइंग कन्वर्टेड टू NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है एंड दिस इज बीइंग फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम जो अभी हमने डिस्कस किया. तो यहाँ पे पहला NADH2 भी बन गया है, ठीक है. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, अभी हमने डिस्कस किया. तो अब आगे ये सारा जो हम साइकिल देख रहे हैं ये पूरा क्रेब्स साइकिल है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल है. तो अभी मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाऊंगी. तो पहले आप देख लो कैसे ये सारा साइकिल नज़र आ रहा है हमें, विच इज़ जो सारे रिएक्शन है दे आर अकरिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जो अभी हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स क्या होता है. तो पहले जैसे कुछ टर्म्स आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन. अगर पानी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. इफ़ देयर इज एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन. इफ़ हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिमूव्ड, दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, राइट. सो ये कुछ आएंगे तो हम पूरे साइकिल में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हम आराम से करते हैं डिस्कस कि कैसे है ये जैसे मैंने बताया कि ये है पायरुविक एसिड, राइट, CH3COOH, जैसे हम इसको खोल के भी लिख सकते हैं ऐसे करके. और ये है एसिटाइल कोएंजाइम है, CH3COS कोएंजाइम है, ठीक है. अब हमारे पास है ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COH कीटो ग्रुप,
CH2 and COH. So this is an organic acid called as oxaloacetic acid. तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे भी लिखा है कि ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, फिर ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, राइट. तो यहाँ पर हम इसको oxaloacetic acid को ऐसे लिख रहे हैं. ये है COH, CH2, COH, right. So this is oxaloacetic acid. Now this oxaloacetic acid, this part जो भी हमने इधर भी डिस्कस किया है, ये इसको हम oxaloacetic acid बोलते हैं. This oxaloacetic acid will combine with acetyl coenzyme A, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दिस इज कॉल्ड एज सिट्रेट सिंथेस, राइट. अब सिट्रेट सिंथेस यूज़ कर रहे हैं हम एंजाइम, प्लस पानी ऐड हो रहा है, मीन हाइड्रेशन हो रहा है. तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जो मैंने दिखाया है, ये दिखाया कि पानी कैसे ऐड हो रहा है. पानी के जैसे पार्ट होते हैं H and OH, तो ये वहाँ यहाँ पे ऐड हो रहे हैं. और यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड और सिट्रेट, राइट. तो अब ये जो कोएंजाइम था ये निकल जाएगा, ये यहाँ पे निकल रहा है साइड पे, देख रहे हो. HS कोएंजाइम बाहर निकल रहा है, सिट्रेट सिंथेस एंजाइम इन्वॉल्व है. सो पहले हमने कहा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज गोइंग टू फॉर्म सिट्रिक एसिड. सो दिस इज सिट्रेट फॉर्मेशन. यहाँ पे हमने देखा कि पानी जो है वो ऐड हो रहा है, मीन हाइड्रेशन हो रहा है. अब हम आगे रिएक्शन देखेंगे कि citrate is being converted to isocitrate by two reactions, hydration and dehydration. ठीक है, पानी ऐड भी हो रहा है, पानी का लॉस भी हो रहा है. तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि पानी अंदर जा रहा है, यहाँ हम दिखा रहे हैं कि पानी बाहर जा रहा है. तो ये हम ब्लू पेन से दिखा रहे हैं कि कहाँ पर पानी जा रहा है इसके अंदर. सो यहाँ पर CH2COH, CHCOH, CHOH, दिस इज़ कॉल्ड एज आइसोसिट्रेट. तो अगर हम दोनों का फार्मूला कंपेयर करें, जो पहले था हमारे पास सिट्रिक एसिड का CH2COH, तो यहाँ पर है COH, अब यहाँ पे अकेला H है, ठीक है, COH. अब यहाँ पे CH है तो यहाँ पे OH इधर आ गया, CHOH एंड COH. सो दिस इज़ कॉल्ड एज आइसोसिट्रिक एसिड. अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रिक एसिड. विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी, तो दिस इज़ कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन. एंड दोनों हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा NAD एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड टू NADH. तो दूसरा NADH2 यहाँ बन गया, ठीक है. अब हमारे पास है ये आइसोसिट्रेट. अब कहाँ से हो रही है हाइड्रोजन को वो हम देखते हैं अभी, राइट. तो यहाँ पर है CH2COH, तो यहाँ पर भी है CH2COH. यहाँ पर है CHCOH, तो यहाँ पर भी है CHCOH. ये जो पार्ट है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दिस इज़ बीइंग रिमूव्ड, राइट. तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो CO कीटो ग्रुप आ गया और COH ग्रुप आ गया. और मैग्नीज आयन भी इन्वॉल्व है, तो ये मैग्नीज के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसका, ठीक है. तो हमारे पास बन गया ऑक्सैलोसक्सिनेट, क्लियर, मैग्नीज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये मैग्नीज के साथ कंबाइंड है. अब हमारे पास अनदर आ गया एंजाइम 2-ऑक्सोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज. तो दिस विल हेल्प इन लूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लूज़ हो गया, तो हमारे पास COH CH2, ठीक है, ऐसे ही है, CH2 हो गया, COH. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, हमें दिख रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. सो अल्टीमेटली हमारे पास ये बन गया अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे आपको आसान लगता है. 1 मिनट, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा ऐसे, यहाँ मैं लिख के दिखाती हूँ आपको. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे COH, CH2, CH2, COH. सो ये है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो भी हमने बनाया है, ठीक है. अब ये जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना है, नाउ दिस विल गेट कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A by enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. Again NAD will be converted to NADH2 and loss of carbon dioxide will take place. Mean कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, दो हाइड्रोजन भी जा रहे हैं, और कोएंजाइम A का एडिशन हो रहा है, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम A. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. तो हमारे पास देखिए ये COH आ गया, CH2 आ गया, देन CH2 आ गया, ये CO आ गया, और आगे ये पूरा का पूरा लॉस हो गया, यहाँ पे एस कोएंजाइम A ऐड हो गया, एंड दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, ठीक है. सो ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A विल गेट कन्वर्टेड टू सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट. अब यहाँ पे देखो कोएंजाइम A बाहर निकल रहा है, राइट.
and this is also called as substrate level phosphorylation. Phosphorylation क्या होता है? Addition of phosphorus. So ADP will get converted into ATP. मीन ये phosphorus का addition हो रहा है ATP में and this is forming ATP. So this is called as substrate level phosphorylation, right? So here substrate level phosphorylation is taking place. ADP is getting converted to ATP and यहाँ पे हमारे पास बन गया सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट और ये कोएंजाइम ये निकल गया. अब हम फार्मूला कंपेयर करते हैं COH CH2 CH2. अब यहाँ पे फिर OH बन गया. यहाँ पर आप देख सकते हो. तो इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट. ये वाला जो पार्ट है COH में कन्वर्ट हो गया. तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम है सिंथेटेज, राइट. अब आगे हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कि सक्सिनेट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू फ्यूमेरेट और फ्यूमेरिक एसिड. तो इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि FAD इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू FADH2. FAD इज़ फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो ये रिड्यूस है, ये पहला हमारे पास बन रहा है FADH2. अब यहाँ पर ATP बन रहा है, तो पहला ATP यहाँ बन रहा है. अब ये जो फ्यूमेरेट बना है सक्सिनेट से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है, जो 2 हाइड्रोजन रिमूव करके FAD में जोड़ रहा है एंड दिस इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू FADH2. ठीक है. अब हमारे पास जो फ्यूमेरेट है इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे. ठीक है. अब जब 2 हाइड्रोजन सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया. इसको बोलते हैं फ्यूमेरेट और फ्यूमेरिक एसिड, राइट. सो इसके लिए एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. अब पानी ऐड हो जाएगा और एंजाइम चाहिए फ्यूमेरेस, राइट. अब हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे एक जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक जगह OH ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए CHOH, ठीक है, और यहाँ पर CH2C. तो पानी ऐड हो रहा है और हमारे पास बन रहा है मैलिक एसिड. क्या बन रहा है? मैलिक एसिड, राइट. अब एंजाइम एक्ट करेगा मैलेट डिहाइड्रोजनेज. तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो NAD को कन्वर्ट कर देगा NADH2 में, ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा फिर से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. क्या बन जाएगा? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ था. COH CO CH2 COH. तो मैलिक एसिड जो है, जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि पानी ऐड हो रहा है, ठीक है, तो पानी ऐड हो रहा है. तो हम इस रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं थोड़ा सा. पानी ऐड हो गया. जैसे हमारा मान लीजिए ये था CH COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है. तो पानी ऐड होना है. तो हम दिखा रहे हैं कि OH यहाँ पे ऐड हो रहा है और H यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है. तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा क्योंकि H एंड OH यहाँ पे ऐड हो गए हैं. तो हमारे पास फार्मूला होएगा CHOH COH, CHOH CH2 COH. तो यहाँ पर आ गया CHOH और यहाँ पर आना है COH भी आना है, ठीक है. तो यहाँ पर आ गया CH2 COH. तो ये फार्मूला है मैलिक एसिड का. आप दोबारा से देख लो फार्मूला इसका. मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ. CHOH COH CH2 COH. ये मैलिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है. अब इस मैलिक एसिड से क्या बन रहा है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. क्या बन रहा है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. तो अब देखोगे कि ये जो मैलिक एसिड है इसमें से ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगी, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, ठीक है. अब यहाँ पर ये कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. तो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड को हम लिख सकते हैं COH CO CH2 COH, ठीक है. तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो हैं निकल गई हैं. जो अभी हमने मैलिक एसिड बनाया था ये 2 हाइड्रोजन निकल गई हैं, बाकी वही फार्मूला है. सो हमारे पास बन गया ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. सो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड अगेन कैन कंबाइन विद एसिटाइल कोएंजाइम एंड दिस कैन फॉर्म द सिट्रेट. तो हम एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं. जस्ट आपको पूरा सर्कल दिख रहा है. अब ये है पायरुविक एसिड, इससे बन रहा है एसिटाइल कोएंजाइम. दिस इज ऑक्सैलोएस्टिक एसिड. ऑक्सैलोएस्टिक एसिड विल कंबाइन विद एसिटाइल कोएंजाइम. दिस विल फॉर्म सिट्रेट और सिट्रिक एसिड. Then this is being converted to isocitric acid. Then this is being converted to oxalosuccinate. Then it is being converted to alpha ketoglutaric acid. Then it is being producing succinyl coenzyme. Then succinate. Then fumarate. Then malate. Then oxaloacetic acid. So in this way whole cycle is being completed. So पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि NADH2 यहाँ बन रही है, फिर NADH2 यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है और फिर यहाँ बन रहा है. 4 बन रहे हैं. एक यहाँ पर है. पूरे साइकिल में कितने हैं? 3, ठीक है. एक यहाँ पे बन रहा है और FADH2 एक और एक ATP.
तो हमारे पास कितने बन गए, NADH2 4, FADH2 1, ATP 1। साइकिल में 3 बन रहे हैं, एक यहाँ पे जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब इसमें जो पूरे रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किए हैं, देखो किस तरह के रिएक्शन हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये पूरे रिएक्शन हो रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। तो पहला रिएक्शन है यहाँ, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज इन्वॉल्व है। तो हम देखेंगे कहाँ पे इन्वॉल्व है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमारे पास है 2-ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, तो वो भी आप देखो यहाँ पर ये इन्वॉल्व है। ठीक है, when it is being converted to alpha ketoglutarate acid, then succinate dehydrogenase and malate dehydrogenase। तो हमने देखा कि यहाँ पर इन्वॉल्व है ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेस। तो ये सारे कौन से रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फिर है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर कि पानी का एडिशन भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम इन्वॉल्व है, राइट। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि फ्यूमेरेज एंजाइम इन्वॉल्व है, यहाँ पे पानी एडिशन हो रहा है। तो ये हो गया पानी वाले रिएक्शन, जहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो रहा है। फिर हमने अभी डिस्कस किया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे सक्सीनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है सक्सीनेट में और एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ इस रिएक्शन में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस और यहाँ पर हो रहा है। सो इस तरह से पूरे रिएक्शन हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल में। तो हमने देखा कि NADH2 4 बन रहे हैं, FADH2 1 बन रहा है, ATP बन रहा है और एंजाइम्स इन्वॉल्व है बहुत सारे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें ये चारों एंजाइम इन्वॉल्व हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, 2-ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, मैलेट डिहाइड्रोजनेस, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मीन पानी का एडिशन एंड लॉस, एकोनिटेज एंड फ्यूमेरेज, and then substrate level पे ATP फॉर्मेशन, सक्सीनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस, डीकार्बोक्सिलेशन, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, 2-ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। और पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि NADH2, FADH2, ATP बन रहे हैं। अब आगे ये जो NADH2 है, FADH2 है, थर्ड जो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है, जिसमें NADH2 और FADH2 से ATP फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे ATP फॉर्मेशन होगा, कैसे वो मेम्ब्रेन में सारा प्रोसेस होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।